السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ کالج کے دور میں مجھ کو اپنے پھوپھی زاد شان سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، رشتہ دار ہی نہیں ہم جماعت بھی تھے۔ نہ جانے کیوں اس معاملے کی بھنک والد صاحب کو ہو گئی۔ وہ روایتی قسم کے باپ نکلے اور انہوں نے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ نہ صرف مجھ کو کالج سے ہٹا لیا بلکہ میری شادی آنن فانن اپنے دوست کے بیٹے حبیب سے کرا دی۔ میرے شوہر صورت اور شکل کے اچھے تھے اور گھرانہ بھی مالدار تھا۔ سسرال والوں نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ حبیب نے بھی مجھے پسند کیا، لیکن ایک بدخواہ رشتہ دار نے میرے اور شان کے بارے میں اڑتی اڑتی سی خبر ان کے کانوں میں پہنچا دی۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سچ بتاؤ، کیا تمہارا پھپھی زاد شان تمہاری پسند ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی والے دن اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اپنے دلہا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں دم بخود رہ گئی، یعنی حیران رہ گئی۔ خودکشی والی بات کا تو مجھ کو بھی علم نہیں تھا۔ میری اڑتی رنگت سے ان کو اور شک گزرا اور مجھے بہت بڑی قسم اٹھانے کو کہا کہ سچ سچ بتاؤ، اگر سچ کہو گی تو معاف کر دوں گا، اس بندھن کی خیر نہیں۔ مجھے سچ بتانا پڑا کہ ہاں، شان اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن پھپھو زیادہ خوشحال نہ تھی، لہذا والد صاحب نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، میں ان سے محبت کرتی ہوں اسی طرح جس طرح ایک لڑکی پہلی بار کسی لڑکے کو دیکھ کر محبت کرتی ہے، لیکن اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میرے دل میں شان کا کہیں سے بھی گزر نہیں۔ پر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے رو رو کر ان کو یقین دلایا کہ میرے اور شان کے ساتھ کچھ غلط مراسم نہ تھے، صرف ایک دوسرے کو ہم پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے کسی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا ایک فطری بات ہے، اور تم نے صحیح کہا کہ لڑکی پہلی بار جب محبت کرتی ہے تو اسی طرح کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے اس سے شادی نہ ہو تو اسے کسی اور سے شادی کرنی ہی پڑتی ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں۔ تم نے سچ بول کر میرے دل میں اپنی قدر بڑھا دی ہے۔ میں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم سچ کہو گی تو معاف کر دوں گا اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے تم کو دل کی گہرائیوں سے معاف کیا، لیکن اس شرط پر کہ میری ہو جانے کے بعد، یعنی میری بیوی بننے کے بعد، اب تم کسی اور کا خیال بھی کبھی دل سے نہ لگاؤ گی، ہمیشہ میری وفادار رہو گی۔ کیا میں اس بات پر یقین کر لوں کہ تم میری ہو کر رہو گی؟ میں نے کہا، جی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ محبت کی تھی، لیکن وہ محبت اب میرے دل میں نہیں، اب آپ میرا سب کچھ ہیں۔ میں آپ کی ہمیشہ سے وفادار تھی اور رہوں گی۔ ان کی یہ شرط جائز تھی۔ میں نے ان پر فخر کیا کہ روایتی مردوں والا بیر رکھنے کے بجائے انہوں نے میرے سچ کی قدر کی اور فراخ دلی سے، یعنی دل بڑا کر کے میری غلطی کو معاف کر دیا۔ تبھی میرے دل میں بھی اپنے شوہر کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس کے بعد کافی دنوں تک مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اس گزری بات کو بھولی بسری کہانی سمجھ کر بھلا دیا ہے اور میرے گزرے ہوئے کل سے کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرا جیون ساتھی انسان کے روپ میں فرشتہ نکلا، ورنہ مرد ذات بھلا کب عورت کی یہ غلطی معاف کرتی ہے۔ اس کے بعد بظاہر میری زندگی خوشگوار گزرنے لگی، لیکن میرا خیال سراسر غلط نکلا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ میری خوش فہمی تھی۔ اب حبیب کو کبھی کبھی دورہ سا پڑ جاتا، صاف تو نہیں، اشاروں میں مجھ کو میرے ماضی کا وہ تانا دیتے، ذہنی سزا بھی دیتے اور مجھ پر طنز کرتے۔ یہ کیفیت ایک آدھ دن رہتی، اگلے روز سب کچھ بھلا کر پھر سے وہ میرے ساتھ گھل مل جاتے۔ تب مجھے سیر کرانے لے جاتے یا کہتے کہ چلو تم کو شاپنگ کرا دوں۔ گویا اپنے رویے پر شرمندہ ہو کر وہ ازالے کی کوشش کرتے۔ رفتہ رفتہ میں ان کے مزاج کی عادی ہو گئی اور ان کے اس رویے کو ان کے ذہن کی لاشعوری، ان کی بچکانہ حرکت جان کر نظر انداز کرنے لگی۔ زندگی کے 15 برس یوں ہی ہنستے روتے گزر گئے۔ میں 4 بچوں کی ماں بن گئی، اپنی زندگی سے مطمئن تھی کہ اچانک ایک روز امی کی زبانی پتہ چلا کہ تمہاری چھوٹی بہن عفیفہ کی شادی شان کے ساتھ طے ہو رہی ہے۔ اس خبر سے ایک بہت بڑا دھچکا سے دل کو لگا، کیونکہ شان کے بارے میں حبیب جان چکے تھے کہ وہ شخص میرا بہنوئی بننے جا رہا تھا جو میرا محبوب تھا۔
ऐसी सूरत में यकीनन हबीब मेरा मैके में आना जाना क्यों कर पसंद करते, जहां शान का बतौर दामाद आना जाना होने वाला था। मेरे वालिदैन को इसका इल्म नहीं था कि हबीब मुझसे शादी से पहले की कोई बात उगलवा चुके हैं। मैंने अम्मी से इल्तिजा की कि अफीफा की शादी शान से ना करें, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। बेटी, तुम्हारे वालिद को अपनी बहन को राजी करने की फिक्र है जो बीमार है, और अफीफा के लिए भी अब कोई दूसरा मुनासिब रिश्ता ही नहीं है, तो ये रिश्ता अब होना ही है। मैंने कहा, मैं जब उससे शादी करना चाहती थी तब तो मेरे वालिद ने उससे मेरी शादी ना कराई। मैं उससे मोहब्बत करती थी, उसे मेरा शौहर न बनने दिया, मेरी शादी कहीं और करा दी कि आज तक वो शख्स इतने साल गुजर जाने के बावजूद मुझे दिन में कई बार ताने देता है, लेकिन मैं सहती हूँ, चुपचाप सहती हूँ। मेरे बाप ने मेरी शादी शान से क्यों न करवाई, और अब जबकि मैं अफीफा के लिए आप सबको मना कर रही हूँ, तो आपको अब गरीब फूफो की याद कैसे आ गई? अम्मी ने मेरी बात को टाल दिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हबीब को अम्मी की ज़बानी इल्म हो गया कि अफीफा की शादी शान से होने जा रही है। ये खबर सुनते ही उनके दिमाग में शक की लहर दौड़ गई। इससे पहले शान हमारे घर नहीं आते जाते थे, क्योंकि फुप्पो मेरा रिश्ता शान से न करने की वजह से वालिद साहब से रूठी हुई थी। लिहाजा मेरा भी शान से शादी के बाद कभी आमना सामना ना हुआ, वो मेरी शादी में शरीक भी ना हुआ। अब जबकि तकदीर शान और अफीफा को मिलाने वाली थी, तो शान से मेरा आमना सामना हो जाना भी लाजमी था। यही बात मेरे शौहर के लिए तशवीश का बाइस थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने वालिदैन को मजबूर करो कि वो अफीफा की शादी शान से ना करें, बल्कि उसके लिए हम हबीब के भाई का रिश्ता लेकर जाते हैं, यानी मेरे देवर का। मैंने अम्मी से बात की कि आप शान की बजाय अफीफा का रिश्ता मेरे देवर से कर दें, क्योंकि हबीब की यही ख्वाहिश है। इस तरह हम दोनों बहनें एक घर में एक छत के नीचे रहेंगी। वैसे भी माली लिहाज से मेरा ससुराल फुप्पो वालों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अफीफा और मेरा साथ हो जाएगा, देवरानी जेठानी हम बन जाएंगे, तो हम दोनों बहनें खुश रहेंगी। पहले ये ख्याल हबीब को क्यों ना आया? अब जबकि तुम्हारे वालिद ने अपनी रूठी हुई बहन को मनाने की खातिर शान को दामाद बनाना कबूल कर लिया है, तो तुम लोग इस मामले में मदाखलत क्यों कर रहे हो? जान लो कि तुम्हारे अब्बा किसी तौर न मानेंगे। तुम जानती तो हो वो कितने जिद्दी हैं। चाहे तुम्हारे मियाँ खुद बात कर ले। अम्मी का जवाब मैंने हबीब को बता दिया। वो बोले, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे वालिद से बात किए लेता हूँ। अगर वो चाहे तो एक मकान तुम्हारी बहन के नाम लिखकर देने को भी तैयार हूँ, लेकिन अफीफा का रिश्ता शान से मुझे नामंजूर है। हबीब ने वालिद से बात की और छोटे भाई के लिए रिश्ता तलब किया। वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बेटा, बरसों बाद रूठी बहन को मनाने का मौका हाथ आया है। पहली बेटी तो उसे ना दे सका, दूसरी बेटी के लिए उसके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, और शान भी मान गया है, वरना वो तो अफीफा से शादी करना ही नहीं चाहता था। और मैं ये मौका क्यों हाथ से गवा दूं? तुमको तुम्हारे भाई के लिए कोई दूसरी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मगर मेरी बहन मुझे न मिलेगी, क्योंकि वो इन दिनों बहुत बीमार है। मैं उसको ऐसे हाल में गमजदा नहीं कर सकता। अब्बा जान को कतई इल्म नहीं था कि मेरे और शान की पसंदीदगी की दास्तान से हबीब को आगही हो चुकी है। यानी वो ये बात जानते हैं कि मैं और शान एक दूसरे को पसंद करते थे। बस उन्होंने ये जिक्र छेड़ा कि फुप्पो ने मेरा रिश्ता मांगा था, जिसके लिए वालिद साहब ने मना कर दिया। बहरहाल वो अब्बाजान के इनकार से बहुत ही ज्यादा मुंह बनाने लगे। घर लौट आए, लेकिन उनके दिल से वो चुभन वो कसक ना गई, बल्कि उनके दिल में दुश्मनी पलने लगी। शान के लिए कदूरत और उसके लिए वो जज्बा आ गया जिसे नफरत कहते हैं। उन्हीं दिनों मैं बीमार पड़ गई, तो अम्मी ने मेरी देखभाल के लिए अफीफा को मेरे पास भेज दिया। अभी वो मेरे घर नहीं पहुंची थी, और उसके मेरे घर पहुंचने से पहले न जाने क्या हुआ कि मैं सीढ़ी से फिसली, और ऐसी फिसली कि मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी औलाद मुझसे छीन ली गई। विलादत से पहले अपनी औलाद को खोने का गम लेकर मैं हॉस्पिटल में 3 दिन रहने के बाद घर आ गई। तभी अफीफा आ चुकी थी। वो मेरे उस गम को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो तो अपने भांजे या भांजी के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तो खाली दामन थी। खैर, उसे मेरी देखभाल तो करनी ही थी, मुझे उसकी उस वक्त जरूरत थी। अफीफा मेरे पास रह गई। एक रात वो मेरे कमरे में सो गई, जबकि दूसरी रात मैंने उसको अपने बराबर वाले कमरे में सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि रात भर जागने से वो निढाल हो रही थी। आज मेरे कमरे में हबीब और मेरी सास सो रहे थे। मैं तो दवा खाकर बेहोशी में जा चुकी थी। मालूम न था
कि अफीफा को हासिल करने के लिए हबीब ऐसी घटिया चाल चलेंगे कि मेरी बहन के कमरे में आधी रात को अपने छोटे भाई को भेज देंगे। सुबह जब मैं जागी तो अफीफा बहुत ही गमजदा लग रही थी। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें देखकर मुझे लगा जैसे वो रात भर रोती रही हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि गुज़िश्ता रात तुम्हारा देवर मेरे कमरे में आया था। उसने कमरे की लाइट रोशन की तो मेरी आंख खुल गई। वो मुझे अपने साथ शादी के लिए मनाने आया था। जब मैंने बताया कि मेरे वालिद कभी राजी न होंगे, वो राजी न हुए, तो जाहिर सी बात है उन्हीं की खुशी के लिए जहां पर वो चाहते हैं वहां मैं शादी करूंगी, ना कि तुमसे शादी करूंगी। अभी मेरा देवर उससे बातें कर ही रहा था कि मेरे शौहर, जी हाँ मेरे शौहर, उसके कमरे में आ गए और सारी सूरत हाल जान गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी साली हो, क्या तुम अपनी बहन का घर बसा देखना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन को ना छोड़ूं तो तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी होगी। मुझे नहीं समझ आ रही थी बात कि वो उस पर इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरा देवर उससे मोहब्बत नहीं करता था या मोहब्बत करने के दावे कर रहा था। क्यों वो उसको हासिल करना चाहता था, मैं नहीं जानती थी। बहरहाल उस रात उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी बहन की इज्जत लूट ली। जी हाँ, मेरे शौहर हबीब और उसके भाई ने, और उससे सख्ती से कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगी, पर वो रोती रही। पर उसने मुझे ये बात नहीं बताई कि उसके बहनोई और मेरे देवर ने उसकी इज्जत लूटी है। उसने कहा कि मैं इस घर से जा रही हूँ, मुझे आपके देवर से शादी नहीं करनी। उसने मुझे अब तक असल बात नहीं बताई थी, वो तो मुझे बहुत बाद में जाकर पता चली और मुझे पछतावा हुआ कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसकी गंदी नजर मेरी बहन पर थी। मेरे दिल में अपने शौहर और देवर के लिए गुस्सा भरा हुआ था। मुझको लगा था कि वो दोनों इस मामले में शामिल हैं और उनकी ये मिली भगत है। अल्लाह ताला ने अफीफा को हिम्मत दी। उसकी इज्जत तो लुट गई थी, लेकिन उसकी इज्जत की लाज रखी। उन्होंने उसको डराने धमकाने की पूरी कोशिश की कि अगर तुमने सच उगला तो सोच लो तुम्हारी बहन रोती हुई इस घर से जाएगी। मेरी बहन ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे शौहर ने उसके साथ क्या किया। बस मैं ये समझ रही थी कि उन्होंने सिर्फ उसे डराया धमकाया है। मैंने कहा कि नहीं, तुम जबरदस्ती मेरे देवर से शादी नहीं करोगी, तुम्हें वही करना होगा जो अब्बा जान चाह रहे हैं। उन्होंने मेरी ख्वाहिश तो पूरी न की और शान एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। वो मुझे तो ना मिल सका, लेकिन मेरी बहन को तो खुशियां मिल जाएं। मैंने ये सोचकर उससे कहा कि तुम हरगिज मेरे देवर से शादी मत करना, वो तुम्हें कभी भी वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें शान के साथ मिलेगी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी और 4 बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। एक बच्चा तो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मैं जानती थी कि हबीब मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे और मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लेंगे। इसी वजह से मैंने सब सच जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कहा, पर अपनी बहन को समझा दिया कि तुम्हें शान से ही शादी करनी है। अब्बा जान को कभी भी तुम ये मत कहना कि मेरा घर उजड़ जाएगा। बहरहाल अफीफा ने मेरी बात मान ली और अब्बा जान से कह दिया कि जल्द अज जल्द शान से उसकी शादी कर दें, क्योंकि फुप्पो की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मेरा अब्बा जान ने मेरी बहन की शादी शान से कर दी और सच में जिस तरह मैंने कहा था कि शान उसका बहुत ख्याल रखेगा, एक बेहतरीन शौहर साबित होगा, वो सच में एक बेहतरीन इंसान था। और मैं जानती थी कि बीवी के साथ उसका रवैया कैसा होगा। मेरे बाप ने मेरी खुशियां तो छीन ली, किसी और के हवाले कर दी, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ये नहीं कर सकती थी। जब तक अम्मी अब्बू जिंदा रहे वही मेरे घर मुझसे मिलने आते रहे। अफीफा की शादी के बाद मैंने उनके घर कदम न रखा, यहाँ तक कि उनकी वफात हो गई। शान और अफीफा भी बैरून मुल्क जा बसे हैं। आज हम मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे जवान हैं। मैंने इस दर्द को दिल में दफन कर लिया है, मगर जब वालिदैन और बहन की याद आती है दिल में एक टीस सी उठती है, क्योंकि अफीफा ने बैरून मुल्क जाने से पहले मुझे वो सब रात में जो कुछ हुआ था सब कुछ सच सच बता दिया था। उसने कहा, आपी मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया क्योंकि हो सकता था इस बात को लेकर तुम अपना घर भी उजाड़ सकती थी। तुम्हारे शौहर ने मेरी इज्जत लूटी थी और उसके साथ उसके भाई ने भी। यही वजह थी कि तुम्हारी बात मैंने मानी, और जब शान से शादी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है, इस बात की खबर सिर्फ मुझे है और मेरे भाई को है। अगर तुमने शान से शादी की तो तुम्हारी बहन को
इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा, रुस्वा कर दूंगा, उसके बच्चे भी उससे छीन लूंगा। क्या तुम ये तड़प देख सकती हो? लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी गंदी नजर को मैं घर में दाखिल होते वक्त ही महसूस कर चुकी थी। उसका भाई और वो जिस तरह मुझ पर गंदी वाहियात नजर रखते थे, मैं समझ गई थी ये मुझ पर जरूर कोई न कोई हाथ मारेंगे। और यही हुआ। इसी वजह से मैंने खुफिया कैमरा कमरे में लगा दिया था, क्योंकि हर रात मुझे यही धड़का लगता कि कब तुम्हारा शौहर और तुम्हारा देवर मेरे पास आएंगे। और दोनों आए। दोनों ने आकर मेरी इज्जत भी लूट ली, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। पर वह सबूत मेरे पास था। मैंने बहनोई साहब को वो सबूत दिखा दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये सबूत सबके सामने चला जाए और तुम रुस्वा हो जाओ, तो फिर याद रखो, और मेरी बहन को अगर ये खबर मिल गई कि तुमने ये घटिया हरकत की है मेरे साथ, जिसका पूरा पूरा सबूत है मेरे पास, तो वो तो तुमको पहले ही छोड़ देगी। लेकिन चूंकि मुझे अपने भांजे और भांजियों का ख्याल है और अपनी बहन की इज्जत का, इसी वजह से ये सबूत तुम देख रहे हो मैं सब तक पहुंचा दूंगी। अगर तुमने मेरी बहन को तलाक दी, इसी वजह से बाजी उसने तुम्हें तलाक न दी, और तुम्हारे साथ उसने कोई ज्यादती भी ना की, क्योंकि वो जानता था कि मैं सबके सामने वो राज खोल सकती थी। मैंने शान को यह नहीं बताया कि मेरी इज्जत लूटने वाला वो दरिंदा कौन है, क्योंकि इससे उसके दिल में तुम्हारी कदर कम हो जाती, जबकि वो तुम्हें जानता है, तुम्हें आज भी याद करता है। पर मैं अफसोस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारा उसका मिलाप नहीं हो सकता। वो तुम्हें आज भी बहुत याद करता है, बहुत याद। तुम उसकी पहली मोहब्बत हो, और मेरे वालिद साहब ने तुम्हारी पहली मोहब्बत तुमसे छीन ली।